নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্স ষ্টুডিঅ'ত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অখিল গগৈৰ কথাৰ কটাকটি গড়কাপ্তানি বিভাগত কমিশন লোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে শাসকীয় পক্ষই পুনৰবাৰ জনাইছো বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অখিল গগৈৰ কথাৰ কটাকটি গড়কাপ্তানি বিভাগত কমিশন লোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে শাসকীয় পক্ষই 5-6 জন ঠিকাদাৰে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলায় সিংঘি নামৰ গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অনুপম শৰ্মা অনিল দাস আৰু আনন্দ জৈনৰ নিচিনা কেইজনমান ঠিকাদাৰে মাত্ৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাইছে কথাটো ক'ব খুজিছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাটো হ'ল এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ইয়াৰ আগৰ যিজন মন্ত্ৰী আছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্য থকালৈকে ইয়াত নিকাভাৱে আছিলে কিন্তু যেতিয়াই নতুন গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী আহিলে লগে লগে 2% কমিশন লোৱা কাম আৰম্ভ হ'ল অবৈধ কমিশন লোৱা কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া শিৱসাগৰত কমিশন ৰাইজ আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে আপুনি 10 কোটি টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে আপোনাৰ বহুত অভিযোগ আছে আমি সিবিআই উপাধ্যক্ষ মহোদয় সিবিআই এনকোয়ারি লাগে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে সিবিআই এনকোয়ারি দিব মাটিৰ কিমান কমিশন নগাঁৱৰ মিছাৰ পৰা তেজপুৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা ভাৰতীয় সেনাই বনাব পাৰে এই সুৰংগ পথ এই প্ৰকল্পৰ বাবে অতি কমেও 4 পৰা 5,000 কোটি টকাৰ খৰচ হ'ব লগতে ৰাজ্যত বিভিন্ন পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সদনত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ বাইহাটা আৰু বৈশিষ্ট্যত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমাৰ যি লাহৰীঘাট সমষ্টিত মথাউৰি নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মুকলি হৈ আছে তাৰ ওপৰত যদি আমি মথাউৰিটো বনাই দিব পাৰো তেতিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰা সিধি শিলঘাটলৈকে আমি ৰাস্তা এটা বিচাৰিব পাৰো অৰ্থাৎ মাজত 7-8 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নাই বাকি গোটেইখিনি মথাউৰি আছে একেবাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা নহব কিন্তু অন্তত এটা অল্টাৰনেট এটা ৰাস্তা এটা হয়তো হ'ব পাৰে সেই এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আজি আমি 200 কোটি টকা ইয়াত ধৰিছো 200 কোটি এই কাৰণে ধৰিছো কাৰণ এইবাৰ ওৱাটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক মথাউৰি বিলাকৰ নাম দিব 2-এজন বিধায়কেও পৰামৰ্শ দিব তাৰ ওপৰত মথাউৰিটোৰ ক্ষতি হ'ব নেকি আইআইটিৰ পৰা এটা চায়ু ল'ব লাগিব এই গোটেইবিলাক কৰোতে আমাক অনুমোদন গৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ পাবগৈ সেইকাৰণে এই বছৰ আমাৰ ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন নাই যিখিনি টকা প্ৰয়োজন হ'ব অহা বছৰ মই টোল গেট আদিৰ ওপৰত মই যাব নোখোজো এটা কথা ঠিক যে যদি ৰাস্তা ঠিক হয় তেতিয়ালে আমি ডিজেল আৰু পেট্ৰলত আমি সেভ কৰো সাধাৰণতে মানুহৰ এটা ধাৰণা যে চৰকাৰে টোল গেটত টকা লৈছে আসলতে সেইটো নহয় তেনেকে হলে গোটেই ভাৰতৰ মানুহে টোল গেটত কাকো পইচা ল'ব নিদিলেহেঁতেন আমেৰিকাৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুব সম্ভৱ চাইনালৈকে আৰু পশ্চিম বংগলৈকে য'ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমাৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পৰা
যোগ্য এগৰাকী নেত্ৰী, তেওঁৰ ৰাজ্যলৈকে তোলা হয়। গতিকে আমি চোৰ বুলি ক'লেতো চবকে চোৰ বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া মই কাকো নাম ধৰি কোৱা নাই, অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা থাকিব লাগে, চব হ'ব। অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা লাগে, আপোনালোকে মূল ৰাস্তাটোতে তোল লগাই দিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিদিনাখন আপুনি এখন চকীত আহিব তেতিয়া সেই কথাবিলাক ক'ব, নহ'লে বহি বহি কথা নহয়। আপোনাৰ আশা আছে হ'ব। এতিয়া আমাৰ ইমান ধৃষ্টতা নাই যে অসমৰ ৰাজনীতিত মই আটাইতকৈ সৎ, মোৰ পৰাতো পৃথিৱীত কোনো কথা লুকাই নাথাকে, আপুনি জানে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্ততঃ মই সদনত থাকিলে এইবোৰ নালাগে। আপুনিতো ক'ব নোৱাৰিবই, আপোনাৰ বহুত গণ্ডগোল আছে। মাননীয় এনেকুৱা কথা আপুনি নক'বনে? অখিল গগৈ একো মন্তব্য নিদিব, শুনি থাকক। একো মন্তব্য ৰিপ্লাই দি আছে। এক মিনিট হ'ব, কথাষাৰ উঠাই ল'ব দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাষাৰ উঠাই ল'ব দিয়ক। এক মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেতিয়াবা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচী চবৰ সন্মুখত আমি কথা পাতিম কোন বেছি সৎ কোন অসৎ, এইটো হ'ব কেতিয়াবা। PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত যোৱা বছৰ আমি SOPDতে 3,000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ, 3,000 crores। আজিকালি যিহেতু ড্ৰোন আদিৰ সুবিধা আছে, ছেটেলাইটৰ সুবিধা আছে, কেনেকৈ আমি কম ডিষ্টেঞ্চত গৈ নতুন ৰাস্তা এটাত ওলাব পাৰোঁ, নতুন এলাইনমেণ্ট আমি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে। কাৰণ পুৰণা এলাইনমেণ্টবিলাকে য'ত লৈ গৈছিল তাতকৈ আমি নতুন ৰাস্তা আমি বনাব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আজি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত এজন মানুহ আহে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বৰপেটা বা যদি আমাৰ নলবাৰী যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি আমিনগাঁও দি ঘূৰি যাব লাগে। আমাৰ মনত এটা চিন্তা আছিলে, যদি পলাশবাৰীৰ পৰা আমি শুৱালকুছিলৈকে ব্ৰিজ এখন বনাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নলবাৰী বৰপেটা যোৱা মানুহ আৰু আমিনগাঁও দি নাহেগৈ, চিধি পলাশবাৰীত উঠিব, শুৱালকুছি হৈ বৰক্ষেত্ৰী হৈ তেওঁ গৈ পাই যাব। আজি আমি প্ৰায় 4,000 কোটি টকা খৰচ কৰি সেই ব্ৰিজখন নিৰ্মাণৰ আমি প্ৰাক্কলন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এতিয়া যদি আমি কাজিৰঙাত 35 কিলোমিটাৰৰ এটা এলিভেটেড ফ্লাইঅভাৰ এখন আমি যদি বনাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটো অকল মাত্ৰ মানুহ অহা যোৱা গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে থাকি যাব, আৰু ওপৰেদি আমি অহা যোৱা কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া নতুনকৈ ৰাস্তা বনাব পাৰিম, তাত চাইক্লিং ট্ৰেক বিভিন্ন কথা যোগ কৰি দিব পৰা হ'ব। যদি মৰিগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈকে আমি আৰু এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজ বনাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে এটা কমিউনিকেশ্যনে এটা নতুন ৰূপ পাব। এই ধৰণৰ অহা 5 বছৰত কেইটামান ডাঙৰ প্ৰকল্প কৰাৰ আমি ইচ্ছা কৰিছোঁ। আজি দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো যদি লেণ্ড একুইজিশ্যন হ'ব পাৰে, আমি 4 লেনযুক্ত কৰিব খুজিছোঁ, নহ'লে অন্ততঃ আহল বহল কৰিব খুজিছোঁ যে ভাল ৰাস্তা এটা হ'ব। হলঙিত এখন এয়াৰপৰ্ট হৈ আছে, আজি গহপুৰৰ পৰা হলঙিলৈকে আমি যদি এতিয়াই ৰাস্তাটো বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে শোণিতপুৰ জিলাৰ মানুহৰ কাৰণে এয়াৰপৰ্টৰ কানেক্টিভিটিটো এতিয়া আমি পাই যাম। ওদালগুৰিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইভিনিং হেডলাইন্সৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। पावर स्वैग चल शुरू हो जा माय टर्न कर दे सब कुछ ऑन ट्रैक। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस बिना हाई कोर्ट की अनुमति के नहीं होंगे वापस। सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की देनी होगी जानकारी। न्यायालय ने 8 दलों पर ठोका जुर्माना। 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। लोकसभा ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से किया पारित। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। उच्च सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पेश करेंगी।
वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 करेंगे पेश। देश सफलतापूर्वक कर रहा है कोरोना महामारी का सामना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 52 करोड़ टीके लगाए गए। कल शाम 7 बजे तक देश भर में 37 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जारी होने से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। बीते दशक में 13 से 15 साल की उम्र के 42% छात्रों ने छोड़ा नशा। मंडाविया ने तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों और उनके माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने में शिक्षकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया। भारत लौटने के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए कहा। संघर्ष का राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र है संबंधित पक्षों के संपर्क में। और दिग्गज फुटबॉलर लायनल मेसी ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का अनुबंध किया। कहा, पीएसजी के साथ जीवन के नए अध्याय की हुई शुरुआत। और सभी खबरें अब विस्तार से ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। अदालत ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो ऐप बनाए जहां मतदाता ऐसी जानकारियां देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है, जिसके बाद अदालत ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है। इसके अलावा सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। आदेश का पालन न होने पर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है। लोकसभा ने कल सर्वसम्मति से 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। विधेयक को सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत के साथ उपस्थित सदस्यों ने पारित किया। मत विभाजन के दौरान 385 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। किसी सदस्य ने विरोध नहीं किया। कानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करना चाहता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये राज्य को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की ताकत देगा। उन्होंने कहा कि ये कानून देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद करेगा। डॉक्टर कुमार ने ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। उच्च सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पेश करेंगी। वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें राजभाषा हिंदी का विकास सहज रूप से स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थानीय भाषा और हिंदी के बीच में स्पर्धा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों सखियां या बहनें हैं। इस भाव के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। संसदीय समिति की बैठक के दौरान समिति के 10वें प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के पास भेजने की मंजूरी भी दी गई। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में बोलकर हमारी राजभाषा का सम्मान किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा और औषधीय शिक्षा का भी संपूर्ण अभ्यासक्रम राजभाषा में भाषांतरण
कराने का काम शुरू किया गया है। आजादी की लड़ाई में स्थानीय भाषाओं और विशेष रूप से हिंदी के योगदान को रेखांकित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की जड़ों को गांव और कस्बों तक पहुंचाया है और लोकतंत्र को हमारा स्वभाव बनाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जितनी बोलियां थी उनको भी हमने संरक्षित और संवर्धित रखा है और जितनी भाषाएं थी उनको भी बचा कर रखा है। साथ ही जितनी लिपियां थी वो भी देवनागरी के तत्वाधान में आगे बढ़ रही हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय भाषाओं और राजभाषा ने देश को एक करने का काम किया है। इसी वजह से राजभाषा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई हैं। टीकाकरण अभियान के 207वें दिन शाम 7 बजे तक 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 20,47,000 से अधिक लाभार्थियों ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। देश में 13 से 15 साल की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों में नशे की लत में 42% तक गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया की रिपोर्ट जारी करते हुए बच्चों और उनके माता पिता को नशे की बुराइयों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू इस्तेमाल के दुष्परिणाम पर स्कूलों में अलग से बताया जाना चाहिए। रिपोर्ट में सामने आया है कि 71% छात्रों को पता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि विमान सेवाओं के बंद होने से पहले स्वदेश लौटने के लिए वे तत्काल यात्रा का इंतजाम करें। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ने के बाद कई प्रांतों और शहरों से वाणिज्यिक विमान यात्रा सेवाएं स्थगित की जा रही हैं। एक सुरक्षा परामर्श में सलाह दी गई है कि अफगानिस्तान में संचालित भारतीय कंपनियां यात्रा सेवाएं स्थगित होने से पहले अपनी परियोजनाओं से भारतीय कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालें। इससे पहले भारत के महावाणिज्य दूतावास ने मजार शरीफ और इसके आसपास रहने वाले भारतीय नागरिकों से कहा कि वे विशेष विमान से भारत लौट जाएं। सार्क की महासचिव एशला रोबॉन बेराकून ने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भेंट की। वे रविवार से सप्ताह भर की भारत यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का लक्ष्य कोविड-19 नियंत्रण सहित क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ बनाना है। विदेश मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि 14वें सार्क महासचिव एशला रोबॉन बेराकून का स्वागत करना अच्छा लगा। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने एशला रोबॉन बेराकून से मुलाकात की। एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि डॉक्टर रंजन ने सार्क के महासचिव के रूप में उनके बेहतर कार्यकाल की कामना की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क एक क्षेत्रीय गठबंधन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल हैं। बेराकून श्रीलंका के राजनयिक हैं जिन्होंने पिछले वर्ष सार्क महासचिव का कार्यभार संभाला था। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शुमार लायनल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 सालों के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। पेरिस पहुंचने पर मेसी की झलक पाने के लिए प्रशंसक बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दिए। मेसी अब जल्दी पीएसजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 34 वर्षीय मेसी ने रविवार को ही बार्सिलोना क्लब को भावुक अलविदा कहा था। मीडिया की खबरों के अनुसार लायनल मेसी को फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलने के लिए हर साल तकरीबन 25 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 258 करोड़ रुपए मिलेंगे। 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ अकेडमी में शामिल हुए मेसी का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 30 जून को खत्म हो गया था। और 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए विश्व की बेहतरीन फिल्मों के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसमें आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 है और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 है। इंडियन पैनोरमा 2021 के लिए फिल्मों की चुनाव करने के दौरान कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।